Hello students, today we will discuss about Geiger-Müller counter. We have already discussed about two gas detectors, that is ionization chamber and proportional counter. Today we will discuss about GM counter, and this is a very sensitive detector that it can even detect a single electron ion pair produced by the incoming radiation. On the screen you can see the construction of a Geiger-Müller counter. You will have a metallic cylinder और बीच में आपका एनोड होगा, सिलेंडर कैथोड की तरह एक्ट करेगा और बाहर ये जो आपका सर्किट लगाया हुआ है, दिस सर्किट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द pulse, and this pulse is then sent to the amplifier, discriminator and counter for the counting. So let us discuss the construction of the GM counter. First of all, it consists of a cylindrical copper tube of diameter 1.5 centimeter and length 2 to 100 centimeter. And this electrode, that is the outer envelope, is connected to the negative terminal of the battery and it will act like a cathode. And कई बार क्या होता है, ये जो आपका आउटर कैथोड है, आउटर सिलेंडर है, ये ग्लास का बना होता है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो इसका इनर सरफेस है, उस इनर सरफेस को हम किससे कोट करते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल से कोट कर देते हैं जो कि कैथोड का काम करेगा. और इसके लिए जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं कैथोड के लिए, कौन कौन कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, निकल जिसका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे मटेरियल्स को हम कैथोड के लिए यूज़ करते हैं. और इस ट्यूब में जो गैस हम फिल करते हैं वो कौन सी होगी, दीज आर इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन and it is mixed with the vapors of some volatile compounds like ethyl alcohol. Okay, ये हम डिस्कस करेंगे क्यों हम ऐसा करते हैं. and in the ratio 10:1 at a total pressure of about 10 centimeter of mercury column, ये हम प्रेशर रखेंगे. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है एनोड और कैथोड के बीच का, वो कितना होगा, 1000 वोल्ट पे रखेंगे. And in some counters neon gas mixed with the traces of halogen. तो कई बार क्या होता है, ट्यूब में हम आर्गन के साथ साथ इथाइल अल्कोहल लेते हैं और कई बार हम क्या करते हैं, नियोन गैस के साथ सम हेलोजन ट्रेसेस लेते हैं जो कि एक क्वेंचिंग वेपर की तरह काम करेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. एंड द टोटल गैस प्रेशर इन this tube is much lower and the potential difference required for the operation is much lower. तो इस केस में the gas pressure is lower and the potential required is also lower. So this is the basic construction of a GM counter. Now, and also inside the along the axis of the tube there is a wire which is made up of tungsten, and it will act like an anode, and the diameter of this wire is 0.1 millimeter. Okay, so this is the construction of a GM counter. Now let us discuss the working of a GM counter. Now we will see the working of a GM counter. तो वर्किंग देखने के लिए देखो बच्चों, हमारे पास ये सिलेंड्रिकल चैम्बर है जिसके अंदर गैस फिल्ड है और बाहर ये जो गैस चैम्बर है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा. उसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है और जो एनोड है, जो सेंटर में एनोड वायर है, उसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है. एंड दिस इज अ वेरी हाई टेंशन बैटरी and a potential difference of about 1000 to 3000 volt is applied in case of a GM counter. And now अब देखो बच्चों, जब भी कोई आयनाइजिंग रेडिएशन इस चैम्बर के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और
positive ion produce होगा because of the ionization. Okay, so when the incoming radiation it collides with the atom of the gas, then it will transfer its energy to the gas atoms and it will produce an electron and a positive ion. Now because the anode is at positive potential, the electron will move towards the एनोड. तो अब क्या है बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन जो कि इनकमिंग रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, इट विल मूव टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज ऑफ द वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड. अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेगा, आपको पता है बच्चों इस सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे कि हमने प्रोपोर्शनल काउंटर में किया था. अब देखो बच्चों, इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज वेरी हाई नियर द एनोड वायर. अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएगा, then it will gain sufficient energy then that it is able to knock out the electron as it collides with the gas atoms. So this electron will produce the secondary electron. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से अब हमारे पास एक तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आ गया और एक जो हमारे पास प्राइमरी आयनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन था वो हो गया. तो अब हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर एक्सेलरेट होंगे, फिर इन 2 से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. फिर ये 4 जो हैं दे विल अगेन प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रॉन. सो इन दिस वे वी विल गेट अ चेन रिएक्शन. एक चेन रिएक्शन बन सेटअप हो जाएगी जिसकी वजह से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड एट द एनोड एंड दिस इज नोन एज एवलेंचे इफेक्ट या टाउनसेंड एवलेंचे. ये हमने प्रोपोर्शनलिटी काउंटर में भी किया था. अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब भी आपका सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बनेगा तो जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहा है, then there is some possibility then that this electron can excite the gas atoms. तो excited gas atom when they de-excite then they can produce the photons also. और ये जो photons हैं these photons can also produce the photo electrons. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये तो हमारे पास टाउनसेंड एवलेंचे तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोन भी क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड दैट फोटो इलेक्ट्रॉन इज देन अगेन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द एवलेंचे इफेक्ट. यानी कि बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द एवलेंचे प्रोड्यूस्ड एट द एनोड. और जैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे आ जाएंगे देन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर attracted by the positive potential of the anode and a large pulse is seen at the in the outer circuit. Okay, and it is counted by the counter. तो बच्चों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंड ये जो प्रोसेस है इट takes very small time, means this takes place in 1 microsecond time. So in case of GM counter we get large number of the avalanches produced because of the secondary primary electron and also the photons which is producing the photo electrons. ठीक है, तो ये लार्ज करंट हमें मिला, मीन्स लार्ज पल्स हमें मिली एट द आउटर सर्किट. अब देखो बच्चों, जैसे ही ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ मिल रहे हैं एट द एनोड या आयनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे एनोड के पास, तो इससे क्या होगा कि देखो
इलेक्ट्रॉन्स तो जो एनोड है वो उसको एकदम से अट्रैक्ट कर लेगा एंड इट विल गिव राइज टू द पल्स, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव आयन भी तो आ रहे हैं, तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या है, इस एवलेंची इफेक्ट की वजह से इस एनोड के पास इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में पॉजिटिव आयंस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये पॉजिटिव आयन इतने ज़्यादा होंगे कि पूरी एनोड वायर के ऊपर ये के आसपास ये फैल जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, स्पेस चार्जेस, पॉजिटिव स्पेस चार्ज प्रोड्यूस होगा, जो कि हमारी वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि एनोड और कैथोड के बीच में है, उसको ये डिक्रीज कर देगा। और कितना डिक्रीज कर देगा, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू जितनी चाहिए जीएम काउंटर को काम करने के लिए, उस थ्रेशोल्ड से ये इस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देगा, और एकदम से जो है आपका ये जीएम काउंटर ये बंद हो जाएगा। ये जो गीगर डिस्चार्ज इस ट्यूब के अंदर क्रिएट हुआ था इस एवलेंचेस की वजह से, वो अब रुक जाएगा, वो अब आगे नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि और इस टाइम में अगर कोई और पार्टिकल एंटर करता है इस ट्यूब के अंदर, तो जो काउंटर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नाउ ये जो पॉजिटिव आयन शीट है ये इस एनोड के आसपास बन रही है, और क्योंकि पॉजिटिव आयंस की मोबिलिटी कम है तो इट विल टेक टाइम टू रीच दी कैथोड। तो कैथोड तक पहुंचने में पॉजिटिव आयन को थोड़ा टाइम लगेगा, और उस टाइम के दौरान कि जब तक ये पॉजिटिव आयन इस एनोड के आसपास से कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, तब तक ये जो आपका डिटेक्टर है ये काम नहीं करेगा। और जब ये सेपरेट हो जाएंगे चार्जेस, मीन्स ये पॉजिटिव आयन जब कैथोड के पास जाने लगेंगे, तब ये काउंटर दोबारा से थ्रेशोल्ड वैल्यू गेन करेगा, और धीरे धीरे पल्स की हाइट फिर से इंक्रीज होनी शुरू होगी, और कुछ टाइम के बाद वो पल्स हाइट को, ओरिजिनल पल्स हाइट को गेन कर लेगा। तो ये है बच्चों वर्किंग ऑफ अ जीएम काउंटर। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, एज आई हैव सेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप देख सकते हो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन से ये एवलेंचे आया, फिर ये इसने एक फोटोन प्रोड्यूस किया, इस फोटोन से एक और एवलेंचे क्रिएट हो गया, और इस एवलेंचे से फिर एक और फोटोन प्रोड्यूस हुआ, और फिर जो है देखो एक पूरी चेन बन गई है। ठीक है, सो in a very small interval of time, means in 1 microsecond, there are large number of the avalanches which are taking place at the anode, which is producing the electrons, large number of electrons, and giving rise to a pulse of large size. और देखो ये इक्वेशन हमने की थी बच्चों, if we consider that a single electron is producing the n secondary electron in the first stage, then in the second stage you will get n square p। n square p कैसे आया था आपको पता है कि जो if p is the probability that the secondary electron is getting converted into the photo electron, okay, photo electron। तो जो टोटल सेकेंड स्टेज की में कितने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू n into np, and this is equal to n square p and so on। तो हमारे पास ये गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया। तो जो गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है गीगर मूलर के केस में इट इज वेरी लार्ज। जब हमने प्रोपोर्शनल काउंटर किया था तो दिस np that was less than 1 and this series was a convergent series, but in case of GM counter this NP it is greater than 1
and this series becomes a divergent series, and that is why we say that we get a large number of current within a microsecond. ठीक है, और यहाँ पे ये जो काउंटर है बच्चों, इस काउंटर में ये डाइवर्ज हो गया. So even a single electron originally formed in the gas by the original radiation can produce ever increasing number of avalanche within a very short time, that is nearly equal to 1 microsecond. ये सारा प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट टाइम में होगा. और इसमें जो बच्चों जो पल्स हाइट जो मिलती है, जो पल्स मिलती है हमें, it does not depend upon the initial ionization. ठीक है, the pulse height is same for every type of radiation, चाहे वो अल्फा पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रॉन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो सभी के लिए सेम हाइट की पल्स आपको मिलेगी. तो इसका मतलब क्या है, जीएम काउंटर में जो पल्स हाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल आयनाइजेशन. ओके, नाउ लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ क्वांचिंग. अब यहाँ पे क्या होता है, क्वांचिंग होता है. अब क्वांचिंग क्या है उसको हम देख लेते हैं. देखो बच्चों, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल चैम्बर, गैस चैम्बर है, और जैसे ही यहाँ पे एनोड पे बहुत सारा चार्ज कलेक्ट होगा, देन इट विल फ्लो थ्रू दिस आउटर सर्किट, और इस सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करके दोबारा से कैथोड पे आएंगे. एंड कैथोड पे क्या होगा, देयर विल बी दी पॉजिटिव आयंस. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons will recombine with the positive ions at the cathode, और जब ये रिकम्बिनेशन होता है बच्चों, तो क्या प्रोड्यूस होता है, फोटोन प्रोड्यूस होता है. और ये फोटोन जब कैथोड मटेरियल पे स्ट्राइक करेगा, देन इट कैन आल्सो प्रोड्यूस दी फोटोन्स, और वो फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है दैट कैन cause another avalanche in the Geiger discharge tube. तो अब देखो बच्चों, ये जो एवलांचे प्रोड्यूस हो रहा है, ये इनकमिंग रेडिएशन की वजह से नहीं हो रहा है. ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज ड्यू टू द रिकम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव आयन एट द कैथोड. तो this is an unwanted avalanche which is produced in the Geiger discharge tube. और ये जो है जो डेड टाइम जिसमें कि आपका डिटेक्टर काम नहीं करता, उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा. तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हम इसमें कुछ सर्किट को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं, या जो इस चैम्बर के अंदर जो गैस हम फिल करते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्वांचिंग. तो क्वांचिंग क्या है, ऑन रीचिंग द एनोड द every positive ion is neutralized by combining with an electron from the cathode, and this process would release an energy or a photon which would liberate another electron from the cathode, which would drift towards the anode and produce another Geiger discharge. In this way, Geiger discharge will trigger another and so on. और इस तरीके से गीगर डिस्चार्ज इस ट्यूब के अंदर क्रिएट हो जाएगा, जो कि इसका जो डेड टाइम है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा. तो दिस प्रोसेस मस्ट बी प्रिवेंटेड टू अवॉइड द मल्टीपल पल्स फॉर्मेशन फॉर वन इवेंट. तो उसको कैसे करते हैं बच्चों? तो क्वांचिंग क्या है? इट इज़ द elimination of the positive sheath around the central wire and it is known as the quenching. और इस क्वांचिंग को हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं. एक है एक्सटर्नल क्वांचिंग
एंड सेकेंड वन इज द इंटरनल क्वांचिंग। तो एक्सटर्नल क्वांचिंग क्या है बच्चों? एक्सटर्नल क्वांचिंग में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? इन दिस मेथड काउंटर कैन बी क्वेंच्ड बाय यूजिंग अ लोड रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द ट्यूब। तो ट्यूब के सीरीज में हम एक वेरी हाई लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो हाई लोड रेजिस्टेंस से लगाने से क्या होगा, जब भी लार्ज करंट फ्लो करेगा एनोड में से एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, दिस रेजिस्टेंस हैज अ लार्ज वोल्टेज ड्रॉप। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, which makes the potential difference between the anode and the cathode fall off to such an extent that the discharge in the counter cannot be maintained। तो इसमें क्या है बच्चों कि देखो, जब आप एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो क्या होगा, जैसे ही आपका इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो करेगा, देन इट विल प्रोड्यूस अ वेरी हाई वोल्टेज ड्रॉप, एंड इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से जो एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा और ये गीगर थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगा। तो जब ये गीगर थ्रेशोल्ड वो वैल्यू है जिस वोल्टेज पे आपका डिस्चार्ज शुरू होता है, और अगर इससे कम वोल्टेज हो गई तो गीगर डिस्चार्ज नहीं होगा और वो रुक जाएगा। तो बाहर रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस बिकम लेस देन द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर द गीगर डिस्चार्ज, एंड इन दिस वे अगर अब आपका कोई इलेक्ट्रॉन कैथोड पॉजिटिव आयन के साथ, कैथोड पे जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ में रिकम्बाइन करेगा और उससे जो फोटोन प्रोड्यूस होगा, वो फोटोन फिर फर्दर अगर कैथोड के साथ कोलाइड करके फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू कॉज द फर्दर गीगर डिस्चार्ज बिकॉज the voltage is not sufficient to produce the Geiger discharge. So the gas multiplication factor, it will decrease and prevent the second discharge. So this was the external quenching. Now let us see what is the internal quenching. इंटरनल क्वेंचिंग में क्या होता है बच्चों, हम जो सिलेंडर लेते हैं उस सिलेंडर के अंदर जो गैस चैम्बर है उसमें जो हम गैसेस यूज़ करते हैं वो उन गैसेस में, जैसे कि इनर्ट गैस अगर हम ले रहे हैं तो इनर्ट गैस के साथ साथ हम एक पॉली ऑर्गेनिक गैस भी ऐड करते हैं। तो पॉली ऑर्गेनिक गैस कौन सी है, जैसे वेपर्स ऑफ द मीथेन, इथेन या इथाइल अल्कोहल, वेपर्स को हम ऐड करते हैं अलोंग विद द आर्गन गैस। और जो रेशियो हम लेंगे, आर्गन इज 90% एंड इथाइल अल्कोहल इज 10%। ओके, तो अब ये कैसे काम करेगा, देखो, द क्वांचिंग गैस आयनाइजेज मोर रेडिली बिकॉज द आयनाइजिंग पोटेंशियल ऑफ द अल्कोहल इज लोअर देन द आर्गन। तो बच्चों इस सिलेंडर के अंदर अब आपके पास इनर्ट गैस है और साथ में आपके पास एक क्वांचिंग गैस है। तो और ये जो क्वांचिंग गैस है इसका जो आयनाइजिंग पोटेंशियल होता है वो आर्गन से कम होगा। इसका मतलब जब इनकमिंग रेडिएशन आएगी तो क्योंकि जो क्वांचिंग गैस है उसका आयनाइजिंग पोटेंशियल कम है, तो सबसे पहले क्वांचिंग गैस के जो एटम्स हैं वो आयनाइज होंगे और वो आयनाइज होके दे विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड। तो जब हम कैथोड के पास देखेंगे तो कैथोड के पास जो अल्कोहल आयंस हैं वो ज़्यादा होंगे और जो आर्गन आयंस है वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट the ion moving outward towards the cathode consist mostly of the alcohol ions. So these ions are neutralized by pulling electrons from the metal surface. अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या करेंगे, जो एनोड से जो आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
उनके साथ रिकम्बाइन करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में कोई फोटोन प्रोड्यूस नहीं होगा जो कि फर्दर फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सके। क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा? क्योंकि these excited molecules usually prefer decomposition rather than photon emission। मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स की क्या खास बात है कि ये मॉलिक्यूल्स डीकम्पोज हो जाते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ में जो आयंस हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन होते हैं, और फोटोन एमिशन नहीं होगा। फोटोन एमिशन नहीं होगा तो फर्दर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और जो सेकेंड एवलेंच है वो भी स्टार्ट नहीं होगा। सो दस देयर आर नो मल्टीपल पल्सिंग एंड द डिस्चार्ज इज क्वेंच्ड सून, ठीक है, आफ्टर द इनिशियल आयनाइजेशन। हाउएवर, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन है कि जब हम ऑर्गेनिक गैसेस को यूज़ करते हैं तो जो उनका लाइफ है वो लिमिटेड हो जाती है। लाइफ लिमिटेड क्यों हो जाती है? बिकॉज जैसे जैसे ये आपका चैम्बर डिटेक्ट करता है पार्टिकल्स को, तो टाइम के साथ में जो ऑर्गेनिक वेपर्स हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहे हैं, दे विल ग्रेजुअली बी कंज्यूम्ड एंड दिस विल मेक द लाइफ ऑफ द डिटेक्टर लिमिटेड। तो इसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार हेलोजन गैसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेलोजन गैसेस भी क्या कैसे काम करेंगी? एज द डिसोसिएटेड हेलोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन एट द एंड ऑफ द डिस्चार्ज सो द ट्यूब हैज़ अनलिमिटेड लाइफ। तो हेलोजन की क्या खास बात है कि ये जो है मॉलिक्यूल्स, हेलोजन मॉलिक्यूल्स जब डिसोसिएट हो जाते हैं, मीन्स जब डिकम्पोज होते हैं, तो डिस्चार्ज के एंड में ये दोबारा से कंबाइन होके फिर इस जो डिटेक्टर है इसकी लाइफ टाइम को ये बढ़ा देते हैं, इसकी लाइफ टाइम अनलिमिटेड हो जाती है। और ये जो हेलोजन क्वेंच्ड काउंटर है ये लो वोल्टेज पे काम करते हैं, मीन्स 300 to 700 वोल्ट। और जो टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी कहाँ से कहाँ तक, -50 डिग्री से +60 डिग्री तक ये आपके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक क्वेंच्ड काउंटर्स की बात करें वो सिर्फ 0 डिग्री तक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उससे कम अगर टेम्परेचर पे अगर डिटेक्टर काम करेगा तो जो ऑर्गेनिक गैसेस है वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। तो हेलोजन फिल्ड ट्यूब्स आर नॉट डैमेज्ड बाय द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज वेयर एज द ऑर्गेनिक पॉली एटॉमिक काउंटर्स आर डैमेज्ड। तो एक और यहाँ पे एडवांटेज है हेलोजन गैसेस का कि जिन ट्यूब्स में हेलोजन गैस फिल होती है, तो देखो बार बार कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज हो रहा है ट्यूब के अंदर, तो बार बार डिस्चार्ज होने से जो ट्यूब है दैट कैन बी डैमेज्ड। लेकिन अगर उसके अंदर हेलोजन है तो वो इजीली जल्दी डैमेज नहीं होता है एज कंपेयर अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज दी एक्सटर्नल क्वेंचिंग एंड इंटरनल क्वेंचिंग। तो एक्सटर्नल क्वेंचिंग में हम सीरीज में लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और इंटरनल क्वेंचिंग में हम क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस के साथ साथ या तो पॉलीएटॉमिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि इथाइल अल्कोहल वेपर्स का यूज़ करते हैं या हम हेलोजेंस का यूज़ करते हैं। और अगर हम हेलोजेंस का यूज़ करते हैं तो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे काउंटर काम करेगा और इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस होंगी, जैसे कि अनलिमिटेड लाइफ हो जाएगी काउंटर की, और जो है टेम्परेचर रेंज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जो है ये इजीली डैमेज भी नहीं होंगे। तो ये तो बात थी आपकी क्वेंचिंग की। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ डेड टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर द इनिशियल आयनाइजेशन अ क्लाउड ऑफ स्लो मूविंग पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड ओवर द एनोड वायर which effectively lowers its potential and the counter cannot operate unless the ions have reached the cathode। ये मैंने बताया था कि आपका काउंटर कब डिस्चार्ज जो है वो कब बंद हो जाएगा। तो देखो जैसे ही आपका
एवलांचे यहाँ पे प्रोड्यूस होगा नियर द एनोड, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में पॉजिटिव आयंस की शीट पूरे इस एनोड के ऊपर बन जाएगी, क्योंकि जो मोबिलिटी है पॉजिटिव आयंस की वो कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स, and this sheet formation of the sheet will reduce the potential difference between the anode and the cathode, and the potential difference become less than the Geiger threshold. तो अब क्या है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि slow moving positive ions will form a cloud of positive ions near the anode and which lowers the potential and the counter cannot operate. और इस टाइम में अगर कोई और इनकमिंग रेडिएशन आ रही है तो उसको काउंटर डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस टाइम को हम बोलते हैं डेड टाइम। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द काउंटर कैन नॉट रिकॉर्ड मोर एनी इवेंट and the time during which after the first event the counter is completely insensitive is called the dead time. और ये जो डेड टाइम होता है वो कितना होता है, इट इज 100 माइक्रो सेकेंड। 100 माइक्रो सेकेंड तक ये काउंटर बंद रहेगा, ये काम नहीं करेगा। In other words, the counter remains dead for the time till the positive ions, कब तक बंद रहेगा, जब तक positive ions have moved sufficiently away from the avalanche site to put the wire या anode back to the Geiger threshold potential. Okay, so this is the dead time. Now let us see the recovery time क्या होता है। तो देखो बच्चों, डेड टाइम जब कंप्लीट हो गया मीन्स जब आपके आयंस इट इज मूव्ड समवट अवे फ्रॉम द एनोड एंड टूवर्ड्स द कैथोड, तो अब अगर जो चैम्बर है उसमें अगर कोई रेडिएशन आती है तो जो पल्स हमें मिलेगी उस पल्स की हाइट पहले कम होगी और उसको कुछ टाइम लगेगा ओरिजिनल पल्स हाइट तक पहुंचने में। तो ये जो टाइम है डेड टाइम के बाद रिकवरी टाइम बोलेंगे इसको, ठीक है। सो इवन आफ्टर द डेड टाइम इज ओवर द एंट्री ऑफ द आयनाइजिंग काउंटर में ऑपरेट विद अ रिड्यूस्ड पल्स साइज till the positive ion reaches the cathode and the counter potential regain its original value for the operation in the Geiger region. तो ये जो टाइम है, the time after which the original pulse level are restored is called the recovery time. यहाँ से आप फिगर से देख सकते हो ये आपका टाइम है। तो इस वोल्टेज पे आपका गीगर डिस्चार्ज हो रहा था पहले, और गीगर डिस्चार्ज के बाद क्या होगा, पॉजिटिव शीट की वजह से आपकी जो पल्स हाइट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि डिस्चार्ज बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये जो टाइम रहेगा यानी कि ये आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम ये आपकी वोल्टेज रहेगी। तो इस टाइम तक को हम बोलेंगे डेड टाइम। और जब ये पॉजिटिव आयंस एनोड से दूर चले जाएंगे, कैथोड के पास चले जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे पल्स साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी जब तक वो ओरिजिनल वोल्टेज पे ना पहुंच जाए जिस पे आपका गीगर डिस्चार्ज हो रहा था। तो ये जो टाइम है, दिस टाइम इज नोन एज द रिकवरी टाइम, and the sum of this dead time and the recovery time is known as the resolving time of the counter. Okay, so I think it is clear dead time क्या होता है, recovery time क्या होता है, और resolving time क्या होता है किसी भी काउंटर का। Now let us see the efficiency of the counting. अब देखो बच्चों, जब हम इस काउंटर की बात करते हैं और ये काउंटर डेड टाइम में ये काम नहीं कर रहा है, तो मान लो आपकी टोटल जो है आ तो रहे हैं 1000 इनकमिंग पार्टिकल, मीन्स जो इनकमिंग रेडिएशन से जो पार्टिकल आ रहे हैं वो 1000 आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा काउंटर, तो उस टाइम में जो आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सपोज इसने 25 पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाया 1000 में से, सॉरी 100 ले लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए। तो अब क्या है कि
100 में से 25 को ये डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो डेड टाइम के टाइम पे एंटर कर रहे थे। तो इसने कितने डिटेक्ट किए, काउंट किए, सिर्फ 75 काउंट कर पाया ये। तो अब क्या है कि नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द, तो इसको तो हम बोलते हैं एक्चुअल काउंट रेट। ये जो एक्चुअल काउंट रेट है कि एक्चुअल में कितने आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड काउंट रेट कि जो डिटेक्टर ने काउंट किया। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ काउंट ऑब्जर्व्ड पर यूनिट टाइम to the number of ionizing particle which passes through the counter during that time is called the efficiency of the counting। यानी कि n क्या है, n is the observed count rate and capital N क्या है, it is the actual count rate। so अब देखो अगर मैं कहूँ कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 75 जो कि ऑब्जर्व्ड है, और एक्चुअल कितनी है 100 है। सो इनटू 100 दिस विल गिव यू द एफिशिएंसी। सो द एफिशिएंसी ऑफ द काउंटर विल बी 75%। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अ GM। नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ अ GM counter। The GM counter is very useful for detecting the nuclear particles like alpha particle, beta particle, photons and the charged particle. It can be used to measure the cosmic rays intensity। इसको measure करने के लिए बहुत अच्छा counter है। This counter is sensitive to the production of even a single ion pair। अगर इनकमिंग रेडिएशन एक वीक आयनाइजिंग पावर की है, मीन्स इफ इट इज प्रोड्यूसिंग इवन अ सिंगल आयन पेयर, देन इट कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय दिस डिटेक्टर। पल्स हाइट सफिशिएंटली हाई होती है, तो इसलिए इसको कोई एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और जो पल्स हाइट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल आयनाइजेशन, मीन्स इनिशियल आयनाइजेशन अल्फा पार्टिकल से हो रही है या बीटा पार्टिकल से हो रही है या फोटोन की वजह से हो रही है, तो जो पल्स साइज है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। पल्स साइज जो है इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द पार्टिकल and the height of the pulse is almost constant over a wide range of the applied voltage, so the power supply needed not be precisely regulated at it is needed in the proportional counter। तो इसको देखने के लिए बच्चों देखो, ये आपका ग्राफ है, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड द अप्लाइड वोल्टेज। तो बच्चों देखो, अगर हम गीगर मुलर काउंटर की वोल्टेज 900 पे रखते हैं, तो 900 वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसका आपका जो डिस्चार्ज है वो होना शुरू होगा, मीन्स इट इज़ द स्टार्टिंग पोटेंशियल at which the counting of the pulses can take place, but at this potential the height of the pulse is very low, and when we increase the voltage after 900 volt, then slowly the count rate will increase, क्योंकि गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये 1000 वोल्ट के पास होगा तो क्या होगा, एकदम से आपकी जो काउंट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, 1000 वोल्ट क्या है, इट इज़ द गीगर थ्रेशोल्ड। गीगर थ्रेशोल्ड क्या है, जिस वोल्टेज के बाद गीगर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो 1000 वोल्ट इज द वोल्टेज एट विच द पल्स हाइट बिकम वेरी हाई, और वहाँ से आपका जो काउंटिंग रेट है, और उसके बाद अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो काउंट रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। और फर्दर अगर हम 1200 के बाद अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज रीजन आ जाएगा, फिर वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज आ जाएगा डिटेक्टर के अंदर, ट्यूब के अंदर। तो ये जो रीजन है, जब आपका पल्स हाइट इट इज़ कांस्टेंट ओवर दिस रीजन, इस रीजन को हम बोलते हैं प्लेट्यू रीजन। और जिस काउंटर में ये प्लेट्यू रीजन ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उसको उतना ही अच्छा GM काउंटर माना जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
कि ये प्लेट्यू रीजन डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की गैस ले रहे हो, किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो फॉर द कैथोड. एंड सो दिस GM काउंटर, its count rate depend upon the nature of the gas which we are filling inside the detector, and also depend upon the material which we are using for the cathode anode material. Okay, so these are the advantages of GM counter. Let us see the disadvantages. देखो, क्योंकि जो आपका रिजॉल्विंग टाइम है इस काउंटर का वो कितना है, 200 to 400 माइक्रोसेकेंड. तो इसका मतलब क्या है, इस टाइम के लिए जो डिटेक्टर है वो पल्सेस को काउंट नहीं कर सकता. तो अगर जहाँ पे हाई काउंट रेट है, तो हाई काउंट रेट के केस में ये डिटेक्टर जो है वो स्लो हो जाएगा. ठीक है, सो दीज counters are quite slow because they have large resolving time following each pulse, which prevent its use at very high counting rates of about 10 to the power 4 events per second. ठीक है, these counters have very low intrinsic efficiency for the detection of the gamma rays. Then they are incapable of providing information about the type of the material which may be produced, which may have produced a count. कि जो इनकमिंग पार्टिकल है वो कैसा पार्टिकल है, वो वेदर इट इज़ अल्फा, बीटा और गामा, इस चीज़ को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. दिस काउंटर लैक इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल डिटेक्टेड, and it has a limited life because the quenching gases dissociate and changes the pressure of the inert gas filling them, and this reduces the flatness of the plateau so that it has a steep slope. तो जैसे मैंने बताया, जो प्लेट्यू रीजन है उसकी जो फ्लैटनेस है वो डिपेंड करती है कि आपने उसके अंदर किस तरीके की गैस ली है. तो उसी के बेस पे जो गीगर ट्यूब का जो लाइफ टाइम है वो भी प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं. सो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी कि जो क्वांचिंग गैसेस हैं उनकी डिसोसिएशन की वजह से जो लाइफ टाइम है GM काउंटर की वो कम हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है. द काउंटर कैन नॉट डिटेक्ट द अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता. दिस इज बिकॉज द वर्किंग ऑफ GM काउंटर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल. लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर अनचार्ज एंड दे आर नॉट हैविंग द आयनाइजिंग प्रॉपर्टी. सो दीज आर द वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ द GM काउंटर. सो दैट्स ऑल फॉर GM काउंटर. थैंक यू.